Hello everyone. So our topic for today is civics ka chapter number 4, the Indian judicial system. Along with the legislative and executive, the judiciary too is an important organ of the government, right? That we know government के कितने bodies है, legislative, executive and judiciary. So legislative और executive जितना important है उतना ही judiciary भी important है. While the legislative makes the laws and execute implements the laws, judiciary gives justice, right? As the name suggests that judiciary क्या करता है कि वो justice देता है and legislative क्या काम करता है कि वो laws बनाता है and उसको execute करता है. In this chapter, we will learn how judiciary works to give justice and thereby helps in removing injustice in a society and establish a healthy society. But before that, let us understand why giving justice is necessary. Okay? कि हम लोग पहले देखेंगे कि justice देना कैसे ज़रूरी है. Judiciary हम लोग को पता है कि it is a law which is made so that country में equality रहे या कोई भी type का partiality ना रहे. पर justice देना क्यों ज़रूरी है वो हम लोग पहले देखेंगे. Opinions, thought, perspective, beliefs, faith and culture differ from person to person, right? सबके opinions अलग अलग हो सकते हैं, सबके thoughts, सबका perspective, सोचने का नज़रिया, सबका culture, everything can be different, right? If people are tolerant, they can avoid conflicts. But if differences of opinion are very sharp, they may lead to conflicts. They should be resolved impartially and in accordance with the laws. For this purpose, an unbiased judicial machinery is required, right? तो सबके opinions अलग अलग हो सकते हैं, पर अगर लोग उसको शांति से tolerate करेंगे, सहन कर लेंगे, तो conflicts या झगड़ा एक दूसरे के बीच में नहीं हो सकता. बट अगर लोगों का opinion अलग अलग है and लोग उसको टॉलरेट नहीं कर सक रहे, फिर क्या होता है, फिर मतलब ओपिनियन जब आपका चेंज होता है या बेसिकली आप जब एक पॉइंट पे मैच नहीं करते, वही बेसिकली जब आपका ओपिनियन चेंज होता है तब क्या होता है, फिर झगड़ा होता है एंड इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या, झगड़ा वैसा. तो इसके लिए एक गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है दैट विल वर्क फॉर दैट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ. ऐसा नहीं कि भाई दोनों पार्टी में से एक पार्टी मेरा फेवरेट है, तो नहीं, इट शुड बी इम्पार्शियल, कि उसमें कोई भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए. एंड इसीलिए जुडिशरी सिस्टम होता है, गवर्नमेंट का बॉडी होता है. कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट में अराइज बिटवीन इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट, राइट? ये कभी कभी इंडिविजुअल में भी झगड़ा हो सकता है, कभी कभी गवर्नमेंट के साथ भी हो सकता है. गवर्नमेंट का इंडिविजुअल का गवर्नमेंट के साथ. देयर आर मेनी कनेक्शंस के कोई भी किसी के भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. अ डिसीजन और लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट में सीम अनफेयर टू पीपल एंड दे मे अप्रोच टू द कोर्ट फॉर जस्टिस. कभी कभी क्या होता है, मुझे लगा नहीं इनका पार्शल जजमेंट है, मुझे लग रहा है कि वो किसी और का साइड ले रहे, अपोनेंट टीम का साइड ले रहे, देन पीपल गो टू कोर्ट, पीपल अप्रोच कोर्ट. The government tries to implement the objective of social justice and equality laid down in the Constitution. The judiciary, through its decision in certain cases or through active involvement, can support the government. The court can help to bring the weaker section of society, women, children, differently abled and transgender into the mainstream of society. तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होती है, वो हमेशा एक मेक श्योर करती है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया है एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं इक्वल मेरा जजमेंट दूँ. एंड कभी कभी क्या होता है, this judiciary system, they have power that they can make laws or they can help people who are weaker section या women है, children है, उनके पास ऐसे rights है जिनके थ्रू वो help कर सकते हैं. इनके पास rights मतलब क्या, basically they have the power कि they can help these people. When the common man benefits from the values of freedom, equality and justice, it leads to the widening and deepening of democracy. This is necessary for the strengthening of democracy, right? कि जब क्या होता है, कॉमन मैन सब चीज़ का बेनिफिट ले सक रहा है तो वो खुश है, फिर उसके साथ उसके तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है. एंड दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, के डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट होता है एंड इसी से हमारा डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? बिकॉज अगर इफ़ अ पर्सन इज सेटिस्फाइड, ही इज़ हैप्पी विद whatever rules and regulations we have, तो कोई टाइप का कॉन्फ्लिक्ट होएगा ही नहीं, समझा?
The rule of laws is protected by judiciary. The law treats everyone equally. Rich, poor, forward, backward, men or women, all are equal before law, and this is expressed clearly through judicial discussion, right? Everyone is equal, there is no partiality. Judiciary helps to protect the rights of people. Conflicts are resolved in accordance with law, and law prevents emergence of repressive and authoritarian groups and individual, right? कि जो सारे conflicts होते हैं जब वो बड़े लेवल पे जाते तो फिर वो लॉज के हिसाब से उसको, जैसे अभी कोर्ट में गया तो लॉ के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सही है या कौन गलत है. सो बेसिकली जुडिशरी के थ्रू क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हम लोग विथ लॉज वी कैन रिजॉल्व. स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी. नाउ हम लोग ने देख लिया कि क्यों जजमेंट देना ज़रूरी है, क्यों एक इम्पार्शियल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हम लोग देखते हैं. India is a union of states. The center and the constitution states have a separate legislative and executive, but there is one judiciary system for the whole of India, right? कि कैसा है, center and constitution states जो है उन सबका खुद का legislative और executive होता है, but overall पूरे country के लिए एक judicial system है. There is no division of courts between the center and constituent states. This means that judiciary in India is an integrated system. The Supreme Court is the apex court under which there are high courts. The high courts control the district courts, following which there are lower courts which are at the bottom of this structure. Okay, तो सबसे पहले कौन आता है, the Supreme Court आता है, फिर उसके अंडर आते हैं high courts, फिर high courts के नीचे district courts होते हैं एंड फिर छोटे छोटे courts होते हैं. अंडरस्टैंड. सुप्रीम कोर्ट अभी जो सबसे पहला है उसके बारे में हम लोग देखेंगे. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI heads the Supreme Court of India. The President appoints the Chief Justice of India and other judges of Supreme Court. By convention, the senior-most judge of the Supreme Court is appointed as the Chief Justice. तो किसके पास ये राइट होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करना, एंड वो जो सारे बाकी के जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट करना वो प्रेसिडेंट देखते हैं. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कंट्री के, वो डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके चीफ जस्टिस कौन होंगे. ओके, एंड मोस्टली क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है ना वही फिर चीफ जस्टिस के लिए अपॉइंट होता है. एक कन्वेक्शन है लोगों का, ये बोलते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं ना वैसे. The judiciary should not work under any kind of pressure. The independence of the judiciary is maintained so as to enable the judge to fearlessly carry out the function of giving justice. For this purpose, the Constitution has made the following provision. कि judiciary किसी के अंडर नहीं होना चाहिए या किसी के प्रेशर में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा fearlessly बिना कोई डरे और बिना डिस्क्रिमिनेट किए अपना जो जजमेंट है वो उनको देना चाहिए. एंड इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं. कौन कौन से हैं, लेट अस सी. The Constitution lays down the eligibility criteria for the judges. A legal expert or one having served as the High Court judge or an experienced advocate is considered एलिजिबल. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बन सकता है, वही बन सकता है जो पहले कभी लीगल एक्सपर्ट हुआ रहेगा हाई कोर्ट जज में. जो हाई कोर्ट है उसमें लीगल एक्सपर्ट का जज होगा, या तो एन एक्सपीरियंस एडवोकेट है, वही ये बन सकता है. क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है, वही एलिजिबल है. तो एलिजिबल क्राइटेरिया कौन कौन एलिजिबल है. सो इफ समवन हु इज़ अ लीगल एक्सपर्ट इन हाई कोर्ट और हैज़ बीन अ जज इन हाई कोर्ट एंड हैज़ और इज़ एन एक्सपीरियंस एडवोकेट, देन ओनली दैट पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर बीइंग अ जज इन सुप्रीम कोर्ट. Judges are appointed by the president. This helps to avoid any political pressure, right? कि कोई political pressure नहीं है, president है, वो तो country का welfare ही देखेंगे, तो there is no pressure on president. वो अपने आप से select करते जो उनको बराबर लगता है. Judges enjoy security of tenure. They cannot be removed from the post for tribal reasons or for political motives. The retirement age of judges of Supreme Court is 65, while for High Court it is 62. Okay, तो जज का कैसे, अगर कोई अंदर ही अंदर झगड़ा हो गया या कोई पॉलिटिकल कोई पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होगा एंड उसको चाहिए कि ये जज रिप्लेस हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है.
एक जज कभी रिप्लेस हो सकता है आफ्टर इज रिटायरमेंट, दैट इज आफ्टर 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट में एंड हाई कोर्ट में 62, एंड ओनली द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट ओके टू रिमूव दैट पर्टिकुलर जज। उसमें भी कैसे ये होता है, मेजॉरिटीज़ होता है, अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके ओपिनियंस मैटर करते हैं एंड फिर वो निकलता है। Personal criticism, the salaries of judge are drawn from the consolidated fund of India. No discussion takes place in parliament. Okay, जो consolidated fund होता है इंडिया का, जो इंडिया का फंड है बेसिकली, उसमें से उनका सैलरी निकलता है। Personal criticisms cannot be made on judges for their acts and decisions. Contempt of court is considered is a punishable offense. This is not only protect the judge from misguided wrongful criticism but also preserves the independence of judiciary. Okay, कि कोई personal criticism नहीं कर सकता उनके ऊपर। बेसिकली मतलब क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, पर्सनल क्रिटिसिज्म मतलब क्या, क्रिटिसिज्म छोड़ो, क्रिटिसिज्म मतलब क्या, बेसिक क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है, एक हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं दैट वी डू नॉट अग्री, यू नो बेसिकली द एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, दैट आई डू नॉट अग्री विथ यू फॉर समवन, लाइक इट कैन बी ऑन समवन और बिकॉज ऑफ द फॉल्ट्स और मिस्टेक्स। तो बेसिकली जब आप एक्सप्रेस करते हो कि आप किसी का यू आर नॉट अग्रीइंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि आपको उसका बात नहीं पट रहा, तब हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। एंड पर्सनल क्रिटिसिज्म मतलब क्या, अगर कोई प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट तक गया एंड व्हेन आई फील कि नहीं वो पार्शियल था, तो मेरा पर्सनल क्रिटिसिज्म मैटर नहीं करेगा वैसे, तो कैन नॉट बी मेड ऑन जजेस, जो उन्होंने डिसीजन लिया उसके ऊपर। एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है, वर्ड है जो लॉ के वाइज यूज़ किया जाता है। इट इज़ बेसिकली मतलब क्या कि व्हेन यू आर डिसअग्रीइंग और डिसअप्रूव, मतलब आप जब डिसरिस्पेक्ट शो करते हो ना टूवर्ड्स द जज, दैट इज़ कॉल्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके, दैट व्हेन यू शो अ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर और डिसोबीडियंट बिहेवियर टू द पीपल हु आर प्रेजेंट इन द कोर्ट, देन दैट इज़ कॉल्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अगर आप वो भी बताओगे ना तो दैट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस एंड आपको उसके लिए पनिश कर सकते हैं। दिस नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द जज फ्रॉम मिसगाइडेड रॉन्ग, मतलब वही कि इससे मतलब क्या होता है कि क्रिटिसिज्म कोई भी टाइप का होएगा नहीं, अगर मुझे नहीं अच्छा लगा तो भी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज अगर मैंने एक्सप्रेस किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, जेल भी हो सकता है, तो इसके लिए लोग एक्सप्रेस नहीं करते। दैट इज़ वाई क्रिटिसिज्म कभी भी होता नहीं है। एंड इसके लिए क्या होता है कि जो जजेस होते हैं वो बिना कोई डरे या बिना कोई प्रेशर के एक डिसीजन ले सकते हैं जो राइट होता है। The parliament cannot discuss the decisions of judges. However, it has the right to remove the judge from the position through impeachment procedure. Okay, कि parliament को जो judge ने decision ले लिया that is final. They don't have to discuss about it, but they have the right to remove the judge only through impeachment procedure. Now, what do you mean by impeachment procedure? अभी निकाल सकते जब एक impeachment मतलब क्या, एक चार्ज लगा दिया मैंने आपके that you are misconducting. Misconducting मतलब क्या, आप अच्छे से आपका काम नहीं कर रहे हो, आप मिसबिहेव कर रहे हो वैसा। सो व्हेन अ चार्ज इज व्हेन अ चार्ज इज अप्लाइड टू अ पर्सन सेइंग दैट अ पर्सन इज मिसकंडक्टिंग, उसका जो प्लेस है या पोजीशन है उसका जब वो मिसकंडक्ट या मिसयूज़ कर रहा है, तब हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो वो लोग ऐसा ही सेड अर्लियर कि कोई भी ऐसे ही जजेस को नहीं निकाल सकता, वो राइट सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है, या तो फिर अंडर जो लोग डिस्कशंस करते हैं तो यही जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो लोग निकाल सकते, बट तब भी जब वो जज है जब उन्होंने अपने पोजीशन का मिसयूज़ किया हो। Understood? Judicial activism. Traditionally, the courts settle the disputes whenever they are approached for that purpose. In the last few decades, this image of the court has undergone a change and they have become increasingly active. This means that the court now seeks to fulfill the constitutional goals of justice and equality. The court has tried to provide legal protection to the marginalized sections in society: women, tribal workers, farmers, and children. Public interest litigations have played an important role in this regard. कि पहले क्या होता था, जब भी जैसे ही अप्रोच होता था कोई भी प्रोजेक्ट, उस टाइम पे वहाँ पे डिस्प्यूट सॉल्व किए जाते थे, बट अब क्या हो गया, ये और भी बढ़ रहा है, एंड विच मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन अ लिटिल मोर एक्टिव। एंड फिर वो कौन से भी
ये होता है, मतलब क्या, इट इज़ बेसिकली मेकिंग श्योर कि जो हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक क्या है, बेसिक ये बोलने का इम्पोर्टेंस क्या है, दैट एवरीवन शुड बी इक्वल एंड कोई भी पार्शियल बिहेवियर या पार्शियल जजमेंट नहीं देना चाहिए, तो वही वो पूरा करता है। एंड बेसिकली आगे क्या बता रहे, द कोर्ट हैज़ ट्राइड टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, किन किन लोगों को, चिल्ड्रन, वुमेन, वर्कर्स, वो सब लोगों को। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैव प्लेड एन important role in this regard. What do you mean by litigation? Litigation is basically when you take a legal action, उसको हम लोग बोलते हैं legal action. तो public interest litigation have also played an important role in this regard कि judicial जो है वो इतना ज़्यादा active हो गया। फाइन, नाउ सी बच्चा लोग, ये फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रीड द पैराग्राफ एंड राइट, सी द एग्जाम्पल, ये सब मैं स्किप करती हूँ, राइट, बिकॉज समटाइम्स वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, बट दैट डजेंट मीन कि आप लोग भी उसको स्किप करोगे। ट्राई रीडिंग इट, समझो, कुछ डाउट है पूछो, बट डोंट स्किप इट। कभी कभी क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव फिलअप हो गया, मैथ द फॉलोइंग हो गया, उसमें से आ जाएगा। अब इफ़ यू सी द पैराग्राफ, फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया है, ऐसे 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया, राइट, फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आप लोग क्या करने वाले हो? यू कैन से दैट आई हैव स्किप दैट पार्ट व्हेन आई वाज लर्निंग, राइट, सो दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज से डोंट स्किप एनी पार्ट, ओके, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स मैं स्किप कर लेती हूँ, बट आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू डू, बिकॉज चैप्टर में पढ़ा रही हूँ तो इतनू सा पार्ट आई कैन एक्सपेक्ट दैट आप लोग खुद से करोगे, एंड आई वॉन्ट यू कि खुद से करो, समझो, अगर कुछ डाउट आया तो पूछो, एंड नहीं आया तो दैट इज़ वे गुड, आई एम वेरी मच हैप्पी। अगर आप लोग को डाउट नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि आप लोगों को चैप्टर समझ रहा है। फाइन, या लेट्स स्टार्ट विथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जो 81 पे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे नीचे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन refers to litigation fields on issue of public importance by individual citizens, social organization or non-governmental organization on behalf of all people. बेसिकली क्या होता है, लिटिगेशन एज आई सेड एक लीगल एक्शन लेते हैं, तो कौन लीगल एक्शन लेता है पब्लिक इम्पॉर्टेंस के लिए? अगर कोई नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या पर्टिकुलर सिटीज़न है जिन्होंने लीगल एक्शन लिया है, तो वो सारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आ जाता है। उसका मेन एम क्या होता है कि लोगों का हित हो या पब्लिक का वेलफेयर हो, एज द नेम सजेस्ट। The court thinks about the question raised and give its decision, कि जो क्वेश्चन रेज किया गया है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में गवर्नमेंट सोचती है एंड फिर उसके ऊपर अपना डिसीजन देती है। हाई कोर्ट, अभी जैसे हम लोग ने देखा सुप्रीम के नीचे हाई था, सुप्रीम कोर्ट हम लोग ने पढ़ा, अभी हम लोग हाई कोर्ट का देखेंगे। हाई कोर्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स द पार्लियामेंट विद द पावर टू एस्टैब्लिश अ हाई कोर्ट इन ईच कंस्टिट्यूएंट स्टेट इन द यूनियन। करेंटली देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, तो हर एक स्टेट में एक एक हाई कोर्ट रहता है। There is a chief justice along with other judges in the high court. All judges of the high court are appointed by the president. Again, the president is the one who picks all the judges of high court. Functions of high court: to supervise and maintain control over the lower courts in its jurisdiction. As I said, supreme court, फिर lower courts एंड रीजनल कोर्ट्स। तो ये क्या काम करता है हाई कोर्ट के, जो अपने अंडर आते, जो उनके नीचे कोर्ट्स आते हैं, उनके ऊपर सुपरवाइज करना एंड उनके वर्क को मेंटेन करना। अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। द गवर्नमेंट सीक्स द एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट व्हाइल अपॉइंटिंग जजेस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जो उनके नीचे कोर्ट्स है, उनको जब जजेस अपॉइंट करने रहते हैं तो वो हाई कोर्ट का एडवाइस लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट देख लिया, हाई कोर्ट देख लिया, अभी डिस्ट्रिक्ट के और उसके अंदर छोटे छोटे जो कोर्ट्स है वो हम लोग देखेंगे। दीज आर कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील, दैट इज तालुका लेवल। द पीपल जनरली गो टू दिस कोर्ट। एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ 1 डिस्ट्रिक्ट जज, ओके, जैसा कोर्ट है उसमें एक जज रहेगा। द ब्रांचेस ऑफ लॉ इन इंडिया, there are 2 main branches of law, civil law and criminal law, okay, कौन कौन सा है एंड क्या क्या देखता है वो हम लोग देखेंगे। सिविल लॉ, दिस लॉ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट्स विच अफेक्ट और इंटरफियर विद द राइट्स ऑफ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, conflict regarding land and property, rent agreement, divorce, etc. After filling a petition in the relevant court, the said court gives a decision. Okay, तो civil मतलब कैसे, basically civil as the name suggests that works for people, कि जो लोगों से related जो सारे work होते हैं या जो सारे conflicts है या जो सारे problem
है उसमें वो डील करता है. अगर मेरा लैंड अग्रीमेंट का प्रॉब्लम है या समथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी या किसी का डिवोर्स केस है या समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए सिविल लॉ रहता है. ओके, दैट बेसिकली वर्क फॉर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पीपल. क्रिमिनल लॉ एज द नेम सजेस्ट, जो वर्क्स विथ जो क्राइम्स और वो सब होते हैं उसके लिए वो काम करता है. Serious crimes are dealt under criminal law. For example, theft, robbery, dowry, murder, etc. In these cases, the first step is to file a first information report, that is FIR, with the police. The police investigates the matter and then a petition is filed in the court. Right? If you might have seen in serials or Crime Patrol or something like that, अगर चोरी बीरी होता है तो पुलिस बोलता है आपको पहले FIR लिखाना पड़ेगा. So that is what FIR is, first information report. फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है and then they come towards a solution. If the charge is approved, then there are provisions for severe punishment, right? And अगर पता चलता है कि हाँ भाई ये राइट है, अगर समझो मैंने किसी पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया एंड देन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि हाँ चोरी हुई है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन को severe punishment मिलेगा. The Indian judiciary has made a significant contribution in development of the country. Common people have a lot of respect and trust in judicial system. The judiciary in India have protected individual freedom, the federal system and the Constitution of India. Courts have played an important role in strengthening the democracy of India, right? That एक side कभी भी कुछ हो जाए तो people they have that वन थिंग इन देयर माइंड दैट ओके कुछ नहीं तो लॉ के हिसाब से कानून के हिसाब से मैं ठीक हो जाऊंगा या आई विल कम आउट ऑफ दिस बिकॉज दे ट्रस्ट द जुडिशियल सिस्टम. Okay, so yeah, that is how we come towards the end of our session. The exercise part again would be a homework. समझो अच्छे से, easy था. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट्स, छोटे छोटे कोर्ट्स, उनका फंक्शन वो सब बताया गया था. Okay, so I hope you have understood the chapter. Exercise part again would be a homework. So yeah, that was it for today's session. We'll see you all in the next one. Till then, bye bye and take care. Bye.